अरे Okay, so almost 53 students have been joined, yet are joining. So हम 5 मिनट में start करेंगे once the students have been completely joined. So please stay tuned.
Taking over it all. Okay, so we will be starting at 11:10 because yet students are joining and हम लोग 11:10 को start करेंगे इसको. So stay tuned. Everyone be ready. It's just 2 minutes to go.
them this far through blood, sweat, and tears. Endless hours of toiling and tinkering have finally culminated here at a racetrack where they will battle it out for all the glory and the coveted Supra crown. It all began back in 2011 when SAE India decided to launch an event that would bring engineering students to a single platform and test all their classroom learnings. And so the Supra was born in India. Credit must be given where it is due, and it is due to Maruti Suzuki that took it upon themselves Okay, so Pranjali, please start. Okay. So yeah, good amount of people, students have joined. Okay, so it's a good strength almost. Just a second. Yeah. Oh, yes, please. Okay, so a very good morning to all. Myself Pranjali, and on behalf of Sayadri Formula Races, I welcome you to this induction program 2022. Friends, before proceeding to this session, I would like to say that just put your thumbs up in the chat box so that हमें पता चले कि हम आप सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस सेशन में. सो जस्ट फटाफट से चैट बॉक्स में थम्स अप डाल दो. Okay, yes, good, good. Excellent, guys, excellent. Okay, तो इसका मतलब है कि सब लोग काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड विल कीप दिस सेशन बाइलिंगुअली. हिंदी और इंग्लिश को मैं साइमल्टेनियसली यूज करूंगी एंड इवन माय कलीग्स विल यूज सो दैट सबको अंडरस्टैंडिंग में इजी जाएगा. And definitely we'll have a Q&A session after this end of the program. So please stay tuned up to the last. Okay, some students have demanded for Marathi as well, so please use that. ओके ओके, काही प्रॉब्लेम नाही. मराठी पण यूज करेन मी. माझे कलिग्स पण यूज करतील. ओके, सो ओके, सो नेक्स्ट लेट्स बिगिन नाउ. As you could see in the slide, the only difference between the ordinary and extraordinary is the little extra. So this quote is being given by Jimmy Johnson. जिमी जॉन्सन हा एक चांगला फिलॉसॉफर आहे अँड डेफिनेटली त्यांनी एक असं कोट सांगितलंय की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मध्ये आणि ऑर्डिनरी मध्ये फक्त एकाच वर्डचा डिफरन्स आहे, दॅट इज द एक्स्ट्रा वर्ड. ओके, सो right from your school days, you have been inculcated in many co-curricular activities along with your academics, right? तर आपण सगळ्यांनी अकॅडमिक्स सोबत खूप साऱ्या को करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज मध्ये सुद्धा पार्टिसिपेट केलं असेल. आय गेस इथे जेवढे प्रेझेंट आहेत, कॅन यू जस्ट प्लीज पुट युअर द थिंग्स विच यू हॅव बी in which you have been inculcated since your childhood, like as dancing, sports या कोई कल्चरल ऍक्टिव्हिटी. ओके, सो आहेत कोणी असं इथे प्रेझेंट? प्लीज respond in the chat box. It's a small exercise, guys, so don't be feel shy. कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज में अगर आप पार्टिसिपेटेड थे. ओके, सो फुटबॉल, आदित्य जाधव,
साइंस एसोसिएशन, एक्सीलेंट। और कोई? ड्रामा कंपटीशन, स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक बाय निनाद, राइट। अमित मोरे, क्रिकेट, वेरी गुड। वॉलीबॉल, फुटबॉल, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। बास्केटबॉल, राइफल शूटिंग, काफी अच्छे अच्छे देखने मिल रहे हैं। ड्रामा, ड्राइंग, ओके। सो ये सारी स्किल्स, ये सारे आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हैं। यू स्टैंड आउट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम यू, फ्रॉम नॉर्मल क्लासमेट्स, या रनर, ड्रामा, डांस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आपको ये सारी चीजें नॉर्मल क्लासमेट से थोड़ा हटके बनाती है, राइट। यू डेफिनेटली स्टैंड आउट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम योर क्लासमेट्स, राइट। तो स्कूल डेज में तो चलो हो गए, अभी आ गए आप फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में भी कुछ सोचा होगा कि यू नीड टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, राइट। क्योंकि सिर्फ आप एकेडमिक्स में करोगे एंड यू विल गो इन द आफ्टरवर्ड्स इन द इंडस्ट्रियल पार्ट, तो आपको सिर्फ इतना ही नहीं पूछेंगे कि आपने सिर्फ एकेडमिक्स किया है, तुम्ही फक्त अकॅडमिक्सवरच फोकस केलाय का, बाकीच्या इतर गोष्टींमध्ये सुद्धा तुमचं काही होतं contribution. So that the second thing is the skills which you are going to enhance. Okay, so that is what you have to be extraordinary throughout your मैं तो कहूंगी कि पूरी लाइफ में आपको थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहिए. सो दिस इज व्हाट अ जिमी जॉनसन इज, एंड ये सेशन आपको एट द एंड ऑफ द सेशन इस कोट का आपको कंप्लीट मीनिंग पता चल जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट. तो आज का सेशन जो है, इसमें जो डिस्कशन पॉइंट्स होंगे दैट विल बी द की स्किल्स, देन व्हाट इज द सुप्रा, व्हाट इज द फॉर्मूला भारत, यू आर गोइंग टू नो समथिंग अबाउट इवेंट्स, इसके अंदर जो इवेंट्स होंगे वो, देन कम्स द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी विच इज गोइंग टू बी यूज्ड, देन कम्स अबाउट योर टीम मैनेजमेंट, द फ्यूचर गोल्स ऑफ आवर टीम, what we will learn in this SFR. For sure आप कोई नई चीज में जब एनरोल करते हो, तुम्ही जेव्हा एखाद्या नवीन गोष्टींमध्ये स्वतःला एनरोल करता, you definitely learn something new, right? So what you're going to learn, that we will see, and at last there will be a question and answer session, right? Okay, next. So key skills. Obviously when you go in the industrial area, Atharv Shetty, talk in English, please. Okay, no problem, Atharv. I am just taking the things in bilingually so that हर किसी को वो comfortable होगा. Okay, so key skills is like when you go in the market, okay, when you show your resume, one section is there that what skills you have acquired throughout your curriculum, right? So this skill shows you that how much potential you are and what capabilities is there. So the first skill is about problem solving. You could see in the video, the first skill is about problem solving. Whenever there is any problem in front of you or any task has been allotted to you, how you will solve it. That is one of the skill within you. Okay. Then comes about the creativity. आप कितने क्रिएटिव हो, ओके, हाउ मच क्रिएटिव आइडियाज यू कैन जनरेट फॉर वन सोल्यूशन. आप नंबर ऑफ, फॉर वन प्रॉब्लम आप नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने जनरेट करते हो, दैट इज योर क्रिएटिविटी. देन ऑब्वियसली कम्स योर कम्युनिकेशन स्किल्स. आप कितने फ्लुएंट हो, वेदर यू आर एबल टू डिलीवर योर पॉइंट्स, सामने वाले को समझ में आ रहा है या नहीं, ये आपके कम्युनिकेशन स्किल्स से रिफ्लेक्ट होते हैं. ओके, एंड डेफिनेटली कम्युनिकेशन स्किल्स अगर अच्छी रहती है तो टीम वर्क ऑब्वियसली उसमें अच्छा होगा, आपका टीम वर्क में परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा होगा, राइट. यू विल कंट्रीब्यूट मोर गुड पॉइंट्स इनटू द टीम. ओके, एंड टीम वर्क इज मोर इसेंशियल स्किल दैट यू हैव टू इनकलकेट विद इन यू जब आप इंडस्ट्रियल लेवल पे जाते हो. व्हेन यू गेट इनटू अ जॉब फॉर अ पर्टिकुलर फोरम, definitely the teamwork is one of the important aspect. And the last is this math skills. सिर्फ मैथ से ही रिलेटेड नहीं, कोई भी न्यूमेरिकल एबिलिटी है आप में, तो अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन अराइज करता है दैट what can be the shortcut trick to be solved for this problem, you could easily answer them through your math skills, right? So these are what the skills important when you completely get out from one institution to another institution, which completely shapes your personality. Okay,
देन नेक्स्ट। ओके, सो आज का टॉपिक ही है कि सुप्रा क्या है, राइट? सो व्हाट इज सुप्रा? सुप्रा हम सब सुन रहे थे, आपने प्रीवियस अगर इंडक्शन किया होगा तो उसमें भी सुप्रा के बारे में आपको बताया दिया गया होगा। आई गेस आज भी कुछ नए स्टूडेंट्स आए होंगे, दे डोंट लाइक फेमिलियर विद व्हाट इज द सुप्रा। सो लेट मी टेल यू, आप इस इमेज में देख रहे हो, 3 इमेजेस दिए हैं। इट इज समथिंग लाइक फॉर्मूला 1, राइट? क्या आप में से कोई बता सकता है कि करंट स्टेज में फॉर्मूला 1 किस कंट्री में टॉप पे स्पोर्ट खेला जाता है? इन विच कंट्री द फॉर्मूला 1 इज at to the top right now? Can anybody answer? Germany. Okay, anyone? Good, Deepak. Good, deep Vartak. Okay, so good approach. जर्मनी है, और कोई जर्मनी के टक्कर में कोई? मोरक्को। मोरक्को, ओके ओके, शायद फॉर्मूला 1 से ज्यादा ये नहीं है। ओके, आदित्य वो स्पीकिंग समथिंग। आदित्य प्लीज गो अहेड। Maybe France. ओके, फ्रांस, वेरी गुड। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट नियर अबाउट आंसर्स आ रहे हैं, जर्मनी एंड ऑल। डेफिनेटली जर्मनी टॉप पे है अभी फॉर्मूला 1 में। सो similar to the Formula 1, we are going to manufacture a similar style of car which is being manufactured by the students. Okay, student formula car बोलते हैं इसको, that is what the Supra called. और आगे आपको इसके बारे में और अच्छे से जानकारी देंगे, one of my colleague Mahesh will guide you. So Mahesh, please take over. Okay, thanks Pranjali. As Pranjali explained just what is the formula card. You might look in picture these formula cards. The formula cards actually look like these. Means in our team we are going to design and manufacture a card which will look like these. Although it's very difficult and challenging task to design and also manufacture the formula card at student level. मतलब आप भी सोच सकते हो कि अगर कोई चीज हमें डिजाइन और एंड मैन्युफैक्चर भी करनी है तो उसमें कितने सारे एफर्ट्स लगते होंगे। और ये तो एक ऐसी चीज है जो कि हमें मैन्युफैक्चर करके हमें इसका परफॉर्मेंस भी बेस्ट चाहिए, हमें इसकी रिलायबिलिटी भी चाहिए, हमें टेस्टिंग में भी इसको पास कराना है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, एक फुल्ली फंक्शनल व्हीकल हमें बनाना है और वो भी स्टूडेंट लेवल पर। मतलब आप सोच सकते हो कि ये कितना डिफिकल्ट और चैलेंजिंग टास्क होगा हमारे लिए। नेक्स्ट स्लाइड। The purpose of our team is that to take participate in various events related to the formula card. That means we are participate in number of events in the same year. मतलब जो भी इंडिया में फॉर्मूला कार्ड से रिलेटेड जो भी इवेंट्स होते हैं उन सब में हम पार्टिसिपेट करते हैं। ऑल्सो वी एमिंग टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल इवेंट्स। मतलब अगर आप नेशनल इवेंट पे अगर फॉर्मूला कार्ड प्रेजेंट कर रहे हो, आपने वहाँ पे एकदम परफॉर्मेंस अच्छा दे दिया, आपके पॉइंट्स वगैरह अच्छे मिल गए आपको, आपने नेशनल इवेंट ऑलमोस्ट मतलब क्वालिफाई कर दिया, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इंटरनेशनल इवेंट में भी जा सकते हैं। मतलब सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आप सिर्फ नेशनल इवेंट, एक तो नेशनल इवेंट करना ही एक बहुत बड़ी बात है इंजीनियरिंग स्टूडेंट के हिसाब से। और फिर भी अगर आप नेशनल में क्वालिफाई करके इंटरनेशनल में जाते हैं तो आप वहाँ पे एक इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे फ्रॉम द फॉर्मूला 3 कार्ड। दिस इज आवर फर्स्ट इवेंट सुप्रा एसएई इंडिया। ये हमारा पहला इवेंट है जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। सुप्रा Supra is organized by SAE India, as you can see here. SAE India क्या है? तो फिर SAE India is a Society of Automotive Engineering। मतलब ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के रिलेटेड जो भी एनहांसमेंट का काम है, फिर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस का काम है इंडिया में, वो सब हैंडल करती है SAE इंडिया। Okay, basically, SAE Supra SAE India is a national event in which the teams from all over India focused to participate. That means जितने भी फॉर्मूला कार्ड के इवेंट अभी होते हैं इंडिया में, उन सब में
एक लार्जेस्ट इवेंट हम कह सकते हैं, या फिर होता है ना कि सबसे ज्यादा पार्टिसिपेंट जिस इवेंट में जाते हैं वही सबसे बड़ा इवेंट होता है, बराबर। तो फिर सुप्रा एक टॉप मोस्ट इवेंट है इंडिया का, जो कि रिलेटेड है फार्मूला कार्ड के, फार्मूला कार्ड से रिलेटेड है। तो दिस आप यहाँ पे देख सकते हो स्लाइड में, वहाँ पे सिंबल दिया है एक मारुति सुजुकी, उसके प्रेजेंस सुप्रा ऐसे ही इंडिया। अगर आप कार के बारे में थोडा बहुत जानते होंगे तो आपको पता होगा, माहित असेल तुम्हाला की मारुती सुजुकी ही एक ऑलमोस्ट 40 to 50% पार्ट ऑफ ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री इज एक्वायर्ड बाय मारुती सुजुकी। म्हणजे मारुती सुझुकी एक टॉप मोस्ट कंपनी इंडियातली, जे की व्हेकल्स मॅन्युफॅक्चर करते, तर ती कंपनी आपल्याला या सुप्रा एसई इंडियामध्ये स्पॉन्सर करत असते। म्हणजे ऍक्च्युली तुम्हाला अंदाज आला असेल की ह्या कुठल्या लेवलचा इव्हेंट आहे। मारुती सुझुकी सोबत अजून अजून कुठले कुठले इव्हेंट्स असतात? हा एक पुढे तेच बोलणार आहोत आपण आदित्य। I can understand your curiosity, but listen. Next slide, I am going to explain the more events. Okay. ठीक आहे, तर मारुती सुझुकी आणि खूप साऱ्या कंपनीज असतात ज्या की स्पॉन्सर करत असतात. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. As I already said, there are number of events. Then the second largest event is a Formula Bharat event. बराबर है, मतलब हम अपनी फॉर्मूला कार्ड डिजाइन कर रहे हैं, तो फिर नंबर ऑफ इवेंट्स में हम ज्यादा कैसे पार्टिसिपेट करें ये तो हमें देखना ही है। तो फिर दूसरा एक बड़ा इवेंट होता है फॉर्मूला भारत इवेंट। दिस इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय बॉश, दैट मीन्स स्पॉन्सर्ड बाय बॉश एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय द मेनी फॉरेन कंपनीज। दैट मीन्स the companies from out of India, you can understand, out of India arranged Formula Bharat event in which the Bosch company, which is the international company, uh, sponsors to them। ये भी एक बड़ा इवेंट है। चलो इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते चलो। This event also provides us a great opportunity to prove your engineering skills. The great thing is that many of the sponsors of Formula Bharat are foreigners. That means out of India. That's why many of the mentors are from the international companies like Bosch and the various international companies. अभी आपको एक Bosch कंपनी पता होगी, अगर कोई ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जानता है बहुत सारी चीजें। तो बॉश कंपनी एक इंटरनेशनल कंपनी है जो कि ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो भी पार्ट्स वगैरह है वो मैन्युफैक्चर करती है। If we appeared prominently in event, then we can take a benefit of on-site placement also, because अगर आप नेशनल इवेंट में कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हो जहाँ पे जजेस होंगे फ्रॉम द इंटरनेशनल, दैट मीन्स फ्रॉम द आउटसाइड कंट्री, then obviously you can take opportunity or take benefit of that things। Here first image is of a Formula Bharat and the second is a sponsors। Okay, next slide। Here you can see the two pictures of gathering, that means from event of the SAE Supra and Formula Bharat। The first image is from the Supra SAE India event, which is held in Buddha International Circuit। जर तुम्हाला YouTube वगैरेचा किंवा कारचा जास्त तुम्हाला जर आवड असेल तर तुम्हाला हे माहित असेल कदाचित, बुद्ध इंटरनॅशनल सर्किट, विच इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, ग्रेटर नोएडा। तर इंडियामध्ये जे काही फॉर्म्युला रेसेस होतात किंवा ज्या काही फॉर्म्युला रिलेटेड रेसेस असतात त्या ऑलमोस्ट सगळ्या रेसेस बुद्ध इंटरनॅशनल सर्किटमध्ये अरेंज केलेल्या असतात। as in the name of itself, it is the international racing track of formula vehicles, and also it is the largest available track in India। आपने YouTube वगैरह पे अगर आप है ज्यादा कार्स के बारे में सर्च करते हैं तो आपने देखा होगा कि कार के प्रमोशनल वीडियोस आते हैं, कार के फोटोज वगैरह आते हैं जो कार एक ट्रैक पे रन कर रही है। तो फिर ये बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो कि
बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में अपने प्रमोशन वीडियोस या फिर अपने कार की टेस्टिंग्स, ऑडी, मर्सिडीज एक्सेट्रा जो कि फॉर्मूला व्हीकल्स बनाती है, वो अपनी टेस्टिंग इस इंडिया में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में होता है। दूसरा इवेंट आप देख सकते हैं, दूसरा इमेज फॉर्मूला भारत है, जो कि कैरी मोटर स्पीडवे स्टेडियम में होता है। ये भी एक फॉर्मूला 3 रेसिंग ट्रैक है जो कि लोकेटेड है तमिलनाडु में। यहाँ पे फॉर्मूला भारत की टेस्टिंग होती है। मतलब अभी आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि जहाँ पे फॉर्मूला कार्स, एक्चुअल जो फॉर्मूला कार्स होती है उनकी टेस्टिंग होती है, वही सेम ट्रैक पे हमारी व्हीकल भी टेस्ट होती है। दैट मीन्स द लेवल ऑफ आवर इवेंट इज सच a great, and we have a great opportunity to participate in from our college, from our government college. Okay, next slide. हा, इन फिजिकल इव्हेंट, आता तुम्हाला तर माहितीच आहे की आपण आता फिजिकल इव्हेंट करतोय, तर त्यामध्ये व्हेरियस टेस्ट असतील. तुम्हाला ज्या प्रकारे मी आधी बोललो की खूप सारे टेस्ट असतात, तर दिस टेस्ट विल बी एक्सप्लेन बाय निनाद. निनाद, प्लीज. Okay. So till now you have told about what is Supra, SA India, Formula Bharat, yeah? And event venue also you have been told. But actually what happened at the time of event? Event के दौरान क्या क्या होता है? ठीक है, अभी वो देखते हैं. So friends, our event is about 5 to 6 days. ठीक है, 5 से 6 दिन तक अपना इवेंट चलता है. तो इतना लंबा क्यों चल रहा है, इतने दिन क्यों लग रहे हैं, क्या क्या होता है इतने दिन? सो वी विल लुक इट स्टेप बाय स्टेप. इन एट द टाइम ऑफ इवेंट 5 to 6 days लगते हैं. सो उसमें मेनी सब इवेंट्स, टेक्निकल इंस्पेक्शन, बहुत कुछ होते हैं, वो अपन देखते हैं स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले आता है टेक्निकल इंस्पेक्शन. टेक्निकल इंस्पेक्शन से भी सबसे पहले एक आता है रजिस्ट्रेशन. पूरा एक दिन लगता है रजिस्ट्रेशन करने में, आपके इवेंट में आपकी टीम को रजिस्टर करने में पूरा एक दिन जाता है. ठीक है, नेक्स्ट डे आता है टेक्निकल इंस्पेक्शन. टेक्निकल इंस्पेक्शन में सबसे पहले आता है व्हीकल सर्टिंग. इसमें क्या होता है कि आप जो इंजन आपके व्हीकल में लगाए हो उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं. उसके डॉक्यूमेंट आपके टीम के नाम पे या आपके टीम के कैप्टन के नाम पे होने जरूरी है. इफ ऐसा ना हो तो वी विल बी एलिमिनेटेड. नेक्स्ट आता है टिल्ट टेस्ट. ये एक प्रकार की टेस्ट होती है, इससे आपके व्हीकल आपने कैसे मैन्युफैक्चर किए वो जज करते हैं. नॉइज टेस्ट. नॉइज टेस्ट में क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट के लॉज रहते हैं एंड यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स के हिसाब से एक रूल बुक वो लोग पब्लिश करते हैं. उसमें भी कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए रहते हैं. उसमें नॉइस का एक स्पेसिफिकेशन रहता है, सर्टेन रेंज के बिटवीन आपके व्हीकल का नॉइस होना चाहिए, तो वो भी टेस्ट करते हैं. नेक्स्ट आता है ब्रेकिंग टेस्ट. आप जब ब्रेक अप्लाई कर रहे हो आपके व्हीकल के, तो एट अ टाइम चारों व्हील के ब्रेक लग रहे हैं क्या, या कहीं पे आगे पीछे हो रहा है, स्किट हो रहा है टायर्स, वो सब देखा जाता है टेक्निकल इंस्पेक्शन में. ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टैटिक इवेंट. स्टैटिक इवेंट में सबसे पहले आता है कॉस्ट प्रेजेंटेशन. अब इतनी बड़ी व्हीकल बना रहे, स्टूडेंट फॉर्मूला व्हीकल बना रहे, पैसा लगेगा. ठीक है, अभी बहुत से कॉलेज होंगे, मतलब प्राइवेट कॉलेज, आपको पता ही होगा, बहुत फंड रहता है उनके पास ऐसे इवेंट्स में, तो वो अपना परफॉर्मेंस पैसों से बढ़ा सकते हैं. मीन्स इफ वो लोग 500 cc का इंजन लगा देंगे तो ऑब्वियसली उनके व्हीकल का परफॉर्मेंस ज्यादा ही होगा, अपने से बेहतर ही होगा. ठीक है, बट वहां के जो जजेस रहते हैं, वहां के जो ऑर्गेनाइजर्स रहते हैं, वो ये नहीं देखते कि परफॉर्मेंस कैसा है. ओके, वो ये देखते हैं कि आपने कितने कम बजट में कितना परफॉर्मेंस दिया है. ठीक है, वो सब अपने को कॉस्ट प्रेजेंटेशन में दिखाना पड़ता है. नेक्स्ट आता है मार्केटिंग प्रेजेंटेशन. मार्केटिंग प्रेजेंटेशन में क्या होता है, वो के जजेस आपको टास्क देते हैं कि यू हैव टू से इफ यू हैव टू सेल योर प्रोडक्ट टू अ कस्टमर, देन हाउ विल यू सेल. आप मार्केटिंग कैसे करोगे आपके प्रोडक्ट की, यूएसपी क्या है आपके प्रोडक्ट की, ताकि वो कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदे. ठीक है, वो सब आता है मार्केटिंग प्रेजेंटेशन में. नेक्स्ट है डिजाइनिंग प्रेजेंटेशन. डिजाइनिंग प्रेजेंटेशन कैसा है, आप व्हीकल बना रहे हैं, डायरेक्ट तो बनाएंगे नहीं,
डिजाइन करेंगे, सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, ठीक है। तो वो डिजाइनिंग आपने जो जो डिजाइन किया है, आप सादा एक स्क्रू लगा रहे हो, वो भी आपको डिजाइन करना पड़ेगा सबसे पहले, और वो प्रेजेंटेशन में आपको प्रिंट करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, देन आप यूज कर सकते हो। वो चीज आपको डिजाइनिंग प्रेजेंटेशन में दिखाना पड़ता है। तो और इस ये सब इवेंट स्टेप बाय स्टेप होते हैं, एक दिन 2 दिन इसको लगता है। वॉइस लैग होतोय. हॅलो, हेलो, वॉइस क्लियर है वॉइस? रुक मैं बताता हूँ. ठीक आहे. सो तुम्हाला आता पण कळलं असेल की काय काय इव्हेंट्स होतात ते, ठीक आहे. काय काय सब इव्हेंट्स आहेत. तर त्याच्यामध्ये आतापर्यंत नीनानी जे जे एक्सप्लेन केले ते कुठले कुठले होते? टेक्निकल इन्स्पेक्शन, स्टॅटिक इव्हेंट, डायनॅमिक इव्हेंट आणि एन्डुरन्स. ठीक आहे. तर इथे जे पण ज्यांना ड्रायव्हिंग ते खूप आवडतं त्यांना एन्डुरन्स टेस्ट नक्कीच खूप आवडेल, म्हणजे काय ऍक्च्युली एन्डुरन्स टेस्ट मध्ये असतं. ठीक आहे. तर तुम्हाला टेक्निकल इन्स्पेक्शन आणि स्टॅटिक इव्हेंट तर कळलं. आता डायनॅमिक मध्ये काय, एकदा तुम्ही पूर्ण तुमच्या गाडीचे स्टॅटिक चेकिंग झाली, पूर्ण कॉस्ट प्रेझेंट तुम्ही केलं, नंतर ब्रेकिंग टेस्ट केले, नॉईज टेस्ट करून झाले. आता ह्याच्यानंतर काय करते इव्हेंट मध्ये, डायनेमिक इव्हेंट एक असतो. ठीक आहे. तर त्याच्यामध्ये ऍक्सेलरेशन, आता बर्ड वरनच कळतंय की ऍक्सेलरेशन म्हणजे काय, एका स्पेसिफिक डिस्टन्स मध्ये आपल्याला कार रन करायला लावतात आणि मॅक्सिमम आपली कार जी ऍक्सेलरेट करेल, म्हणजे मॅक्सिमम अमाऊंट ऑफ ऍक्सेलरेशन जनरेट करेल. ठीक आहे. ते मेजर करतात काही डिव्हाइसेस यूज करून. ठीक आहे. सेकंड आहे स्किड पॅड. ठीक आहे. आता मोस्टली सगळ्यांना माहिती आहे, सगळ्यांकडे आतापर्यंत ड्रायव्हिंग लायसन्स असेल किंवा माहितच असेल ड्रायव्हिंग लायसन्स मध्ये ऍक्च्युली काय असतं. तर एक 8 शेपचा ट्रॅक असतो. तर सिमिलरली स्किड पॅड मध्ये पण एक 8 शेपचा ट्रॅक त्यांनी बनवलेला असतो आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी ऑइल किंवा वॉटर स्प्रेड केलं असतं. आता ते का करतात बरं, जेव्हा आपण आपली व्हेकल आहे त्याच्यामध्ये टेस्ट करणार आहेत, तर त्याच्यामध्ये ड्रायव्हरचं स्किल, स्टेअरिंग सिस्टम्स, ब्रेकिंग सिस्टम्स, हे बाकीचे जेवढे पण सिस्टम्स आहेत आपल्या कारमध्ये ते प्रॉपरली वर्क करतायत का, ते प्रॉपरली एफिशियंटली वर्क करतायत का, हे चेक करतात. आणि लास्ट टेस्ट जो असतो तो ऑटोक्रॉस. त्याच्यामध्ये पण सेम आहे, आपण सिमिलर पकडू शकतो. त्याच्यामध्ये पण एक रॅन्डम ट्रॅक डिझाईन केला जातो इव्हेंट ऑर्गनायझर्स कडनं आणि आपल्याला परत ड्रायव्हरच्या स्किलवरती, ब्रेकिंग्सवरती, स्टेअरिंगवरती आपली जे पण सिस्टम्स आहेत ते किती एफिशियंटली वर्क करतात हे चेक करतात त्याच्यामध्ये. आणि लास्टला जे आहे ते एन्डुरन्स आहे. ठीक आहे. तर मी तुम्हाला म्हणलं जे पण इथे ड्रायव्हर्स आहेत ते खूप एक्सायटेड असतील. तर एन्डुरन्स काय, ऍक्च्युली एक रेस असती. तुम्ही F1 ची बघितली असेल, रेस असतात त्यांच्या. तर सिमिलरली ते सुद्धा हेच प्रोसिजर फॉलो करतात. आधी पूर्ण ते टेक्निकल इन्स्पेक्शन ते सगळं करून घेतात आणि ऍट द एंड आपण जे पण बघतो रेसेस असतात. तर सिमिलरली एन्डुरन्स मध्ये पण जे पण क्वालिफाय झालेले असतात, जे कॉलेजेस किंवा युनिव्हर्सिटी जे क्वालिफाय होतात, ते ऍट द एंड त्यांची एक रेस असते. ओके. नेक्स्ट. ओके. हे जे पण टेस्टचा पार्ट आहे. ओके. वन ऑफ माय कलीग विल ऍक्च्युअली एक्सप्लेन यू. Thank you. So, as I told earlier about events, so I think everyone got an idea about it. Now, let us see this test in brief, as we mentioned earlier. अब देखो मेन एग्जाम क्वालिफाई करनी है तो टेस्ट पास करने पड़ेंगे ना. कुछ ऐसा सीन इधर भी है. पहले देखते हैं टिल्ट टेस्ट, जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं. ये जो टेस्ट होगा वो टिल्ट करके होगा. अभी ये सर्टेन एंगल पर टिल्ट कर रहे हैं. ओके. अभी टिल्ट करके ये क्या देखेंगे कि कुछ लीकेजेस है या हमारी जो व्हीकल में सस्पेंशन सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं. अगर आपके व्हीकल में लीकेजेस नहीं है या सस्पेंशन सिस्टम प्रॉपरली वर्क करते तो आप ये टेस्ट पास करते हो, जैसा कि देख सकते हैं. ओके. So let us move towards next test, acceleration test. Please on the video. Acceleration test comes under dynamic event. एक्चुअल में होता क्या है ना कि मिनिमम टाइम में आपकी व्हीकल कितना मैक्सिमम एक्सेलरेट कर सकती है. अभी आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग लाइन पर है, यहाँ पर वो व्हीकल एक्सेलरेट कर रही है. अभी जब ग्रीन फ्लैग दिखाएंगे और वो स्टार्ट होगा तो एंड लाइन तक पहुंचने के लिए कितना कम समय लगता है वो चेक किया जाता है. और जितने कम समय में आप वहां तक पहुंचते हैं उतना अच्छा मार्क्स मीन्स वो टेस्ट आप पास कर लेते हैं इन शॉर्ट.
Just have a look on this video. Okay. अभी आते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ, वो है स्किड पैड टेस्ट। स्किड पैड टेस्ट में क्या होता है, ये कोन्स देख रहे होंगे आपको। सो एक 8 शेप ट्रैक डिजाइन किया हुआ था, तो उसमें आपकी व्हीकल को चलाना पड़ता है सो दैट कि आप कोन्स को हिट ना करके अच्छे से व्हीकल ड्राइव करते हैं। मीन्स इधर आपके ड्राइविंग स्किल्स, कॉर्नरिंग कैसी है, स्टीयरिंग कैसी है, ब्रेकिंग सिस्टम कैसी है, ये चेक होता है। अभी यहाँ पर जो व्हीकल चलाई गई है वो कोन्स को विदाउट हिट करके चलाई गई है, तो ये टेस्ट वो पास कर चुकी है। अभी आते हैं ऑटो क्रॉस टेस्ट की तरफ। ऑटो क्रॉस टेस्ट में भी आपको ये कोन्स दिखाई देंगे। तो एक रैंडम ट्रैक डिजाइन किया होता है जिसमें से आपको व्हीकल को चलाना पड़ता है विदाउट हिटिंग कोन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगेन ड्राइविंग स्किल्स दिखाने पड़ते हैं, आपकी सिस्टम्स प्रॉपर्ली वर्क होते हैं या नहीं, ये चेक किया जाता है। यहाँ पर 8 शेप ट्रैक अगेन डिजाइन किया हुआ है जिसमें ये व्हीकल चल रही है। और ऐसे हमें भी चलाना है उधर, तो ये टेस्ट पास कर चुकी है। अब आता है फाइनल टेस्ट, मीन्स एंड्योरेंस टेस्ट। एंड्योरेंस टेस्ट को कंपेयर करते हैं मैराथन से। अब मैराथन टेस्ट में क्या होता है कि कम टाइम में आप लैप कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं। कम टाइम में लैप कंप्लीट किया तो आपको पोजीशन अच्छी, यही बात इधर भी होती है कि आपको कम टाइम में इकोनॉमिक स्पीड पे व्हीकल चलाकर आपके लैप कंप्लीट करने होते हैं रेस ट्रैक पर जाकर, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। अगर आप पास कर गए कम टाइम में तो अच्छी रैंक मिलती है। अभी तक हमने देखा कि सह्याद्री फॉर्मूला रेसर्स कौन से इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती है, उनमें कौन से टेस्ट है। सो लेट अस स्विच टू अनदर पार्ट कि जिस इवेंट के लिए हम कार बना रहे हैं। हाँ हेलो मैडम। हाँ हेलो, एक डाउट था मैडम। हाँ प्लीज गो फॉर। मैम अभी आपने जो बताया, जो टेस्ट होते हैं गाड़ी के सब, जो भी टेस्ट होते हैं जो आपने टिल्ट करके बताया, एक्सेलरेशन टेस्ट, वो सब एट एनी पॉइंट मैम अगर कुछ वैल्यू मतलब कुछ जो इंस्ट्रक्शन होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं आपकी गाड़ी बराबर नहीं है, आपको ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और या फिर ऐसा आपको ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, तो ये उसी टाइम करते हैं या फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है? नहीं, उसके लिए टाइम दिया होता है। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, उसके लिए टाइम देते हैं। अगर आप उस टाइम में वो क्वेरी कंप्लीट करके या वो बैकअप कंप्लीट करते हैं तो आपको थोड़े टाइम बाद बुलाया जाता है और फिर से टेस्ट किया जाता है। अगर फिर पास करते हैं तो नेक्स्ट टेस्ट के लिए, वरना आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अच्छा ठीक है, थैंक यू मैम। सो अभी तक हमने देखा कि कौन इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे कौन से और उसके लिए कौन से टेस्ट है। अब जिस इवेंट के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कार बना रहे हैं तो वो बनाएंगे कैसे। सो आई हैंड ओवर टू श्रुति फॉर द शी विल एक्सप्लेन। थैंक यू सो मच नम्रता। सो अभी तक तो हमने देख लिया कि किस तरह की कार हम मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, फॉर्मूला कार। मगर हम सभी को पता है, हम सब नेटिजन्स नियोफाइल्स है, सो सभी को पता है कि सारा का सारा काम मैन्युअली तो हम कर नहीं सकते। इसीलिए हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं और आगे भी करने वाले हैं। उसके लिए हम 2 तरह की सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं। एक है कैड एंड कैम सॉफ्टवेयर्स और दूसरे है CAE सॉफ्टवेयर्स। बेसिकली कैड एंड कैम क्या होता है, तो कैड इज द कंप्यूटर एडेड ड्राइंग एंड कैम इज द कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर्स, और CAE का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर्स। ये जो सॉफ्टवेयर्स है ना, वो हमारा परफॉर्मेंस और प्रोडक्ट को
प्रोडक्ट के डिज़ाइन को और असेसमेंट को इम्प्रूव करने के लिए मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। इस स्लाइड पे आप लेफ्ट लोअर कॉर्नर में देख सकते हो DS कटिया एंड लोटस, ये दो लोगोज दिख रहे होंगे आपको। सो बेसिकली DS कटिया ये जो सॉफ्टवेयर है जो हम यूज़ कर रहे हैं वो एक एक्रोनिम है, कंप्यूटर एडेड 3 डायमेंशनल इंटरैक्टिव एप्लीकेशन। इस नाम का कटिया ये एक एक्रोनिम है और ये सॉफ्टवेयर जनरली कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, 3D मॉडलिंग, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, इसके लिए यूज किया जाता है। दूसरा है लोटस। अभी मेरी कलीग नम्रता आपको एक्सप्लेन कर रही थी टिल्ट टेस्ट के बारे में, उस वक्त उसने एक सस्पेंशन का टेस्ट ये बात बोली। सो सस्पेंशंस के जो कुछ भी एनालिसिस होता है वो इस लोटस नाम के सॉफ्टवेयर में हम कर देते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इस स्लाइड पे आप देख सकते हो कि दो इंटरफेस आप देख सकते हो। मैम एक येते यस, इको येत आहे. आत्ता येतोय का आवाज नीट? हो, इट्स क्लिअर नाव. ओके. सो आत्ता तुम्ही स्लाइडवर बघू शकता की दोन इंटरफेस दिसतात सॉफ्टवेअरचे, एक सॉलिडवर्क्स आणि दुसरा आहे एनसिस सॉफ्टवेअर. इथे तुम्हाला दिसत असेल की एक वायर फ्रेम दिसत आहे एक कारची, ज्याला आपण चॅसिस बोलतो. चॅसिस हे जनरली एक फ्रेमवर्क असतं कारचं, ज्याच्यामध्ये आपण बाकीचे कारचे माउंटिंग्स करत असतो. सो सॉलिडवर्क्स या सॉफ्टवेअर वरती आपण ही जी वायर फ्रेम दिसतीये ती आपण बनवतो. सॉलिडवर्क सॉफ्टवेअर हे एक कम्प्युटर एडेड डिझाईन सॉफ्टवेअर आहे, जे की डसॉल्ट सिस्टीम ओन करतात आणि हे मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग अँड ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीमध्ये खूप प्रिडॉमिनंटली वापरलं जाणारं सॉफ्टवेअर आहे, जे की 3D मॉडेलिंगसाठी यूज केलं जातं. दुसरं आहे एनसिस सॉफ्टवेअर, आणि एनसिस हे एक जनरल पर्पज सॉफ्टवेअर आहे, ज्याच्यामध्ये मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगशी रिलेटेड प्रॉब्लेम्सचं न्यूमरिकल सॉल्विंग केलं जातं. आता प्रॉब्लेम्स कुठले असू शकतात तर स्टॅटिक्सचे प्रॉब्लेम, डायनॅमिक्सचे प्रॉब्लेम, स्ट्रक्चरल अनालिसिस, हीट ट्रान्सफर, फ्लुइड प्रॉब्लेम, या सगळ्यांचं अनालिसिस हे एनसिस सॉफ्टवेअरमध्ये केलं जातं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो टिल नाव ह्या गोष्टी तरी लक्षात आल्या की कार कशी बनवतोय, सॉफ्टवेअर्स कुठले यूज केले जातात, इव्हेंट कशा प्रकारचा असतो. पण ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी एक फर्म गोष्ट आपल्याला लागते, ती म्हणजे चांगली टीम आणि टीमची मॅनेजमेंट. कलेक्टिव्हली एखादा गोल अचीव्ह करायचा असेल तर त्यासाठी स्ट्रॉंग टीम मॅनेजमेंट असणं खूप गरजेचं असतं, कारण की टीम ही अशी गोष्ट आहे की जे आपल्याला आपला गोल अचीव्ह करण्यासाठी, आपली प्रोडक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी खूप मदत करत असते. सेम वे सह्याद्री फॉर्म्युला रेसर्स ही टीम दोन पार्ट्समध्ये बायफर्गेट केलेली आहे. एक आहे टेक्निकल पार्ट आणि दुसरा आहे नॉन टेक्निकल पार्ट. टेक्निकल पार्टमध्ये सस्पेन्शन, चॅसिस, स्टेरिंग, इंजिन, ब्रेकिंग अँड टायर, कॅड अँड कॅम, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोडायनॅमिक्स अँड अर्गोनॉमिक्स, हे सगळे डिव्हिजन्स आहेत जे की आपापल्या एथिक्सनुसार काम करत असतात. सेकंड पार्ट आहे नॉन टेक्निकल, ज्याच्यामध्ये मॅनेजमेंट, मीडिया हँडलिंग, फायनान्स, स्पॉन्सरशिप, इव्हेंटचं ट्रॅकिंग किंवा पोस्टर प्रेझेंटेशन्स, या सगळ्या गोष्टी असतात या नॉन टेक्निकलमध्ये येतात. सो एक फर्म टीम मॅनेजमेंट जशी असायला हवी ती, याचं बेस्ट एक्झाम्पल तुम्हाला ह्या टीममध्ये दिसेल की हाऊ बायफर्गेशन वर्क्स टू दी प्रॉपर स्टेट्स. नेक्स्ट प्लीज. Along with firm team management and collective working efforts, we have sort out certain goals. You can see here, first is the national plus international competitions. टीम सह्याद्री फॉर्म्युला रेसर्स या टीमला ज्या काही इव्हेंटमध्ये पार्टिसिपेट करतोय त्यामध्ये एक्सिलन्सच हवा आहे. मीन्स वी आर थ्रायव्हिंग फॉर दी एक्सिलन्स ऑल ओव्हर आवर वर्क एथिक्स. अँड देन इज दी अचिव्हिंग सुपिरियॉरिटी. ज्या फील्डमध्ये आता काम करतोय त्यामध्ये अटमोस्ट प्रिसिजन आणणं, ह्याच्यासाठी आम्ही सदैव प्रयत्नशील असतो. मे बी तो थेरॉटिकल असेल पार्ट, प्रॅक्टिकल पार्ट असेल, और मॅन्युफॅक्चरिंग पार्ट, एव्हरीथिंग शुड बी प्रिसाइज. हाच आमचा दरवेळीचा प्रयत्न राहत असतो आणि आम्ही त्या गोष्टी आतापर्यंत अचीव्ह सुद्धा केल्यात. अँड थर्ड थिंग इज एक्सप्लोसिव्ह परफॉर्मन्स. लाईक वॉट एव्हर कॉम्पिटिशन्स वी हॅव बीन पार्टिसिपेटिंग टिल नाव, वी वॉन्ट
to prove there are excellence, and we've been going toward that path also. So next please. After getting good pretty good idea about what our goals are, what our aim are, you will be having a question की आम्ही तर आलोय टीम मध्ये, पण आम्ही टीम मध्ये येऊन शिकणार काय आहे. हे सगळे स्किल्स जे इंडस्ट्री रिलेटेड वर्किंग एथिक्ससाठी एक्सपेक्टेड आहेत, ते सगळेच्या सगळे स्किल्स तुम्ही इथे शिकू शकता. पहिली गोष्ट आहे टीम वर्क, कम्युनिकेशन, वर्क एथिक्स, लीडरशिप स्किल्स, प्रॉब्लेम सॉल्विंग, मॅनेजमेंट, अडॅप्टेबिलिटी आणि क्रिएटिव्हिटी. तर you all guys are knowing that ki being an engineer, you are expected after the graduation that you need to be the industry ready person, right? तुम्हाला प्रॅक्टिकल नॉलेज असेल, थेरॉटिकल नॉलेज असेल, पण तुमच्याकडे की स्किल्स नसतील तर ह्या सगळ्या गोष्टींचा तसा तर बघायला गेल्यावर काहीच उपयोग होत नाही. सो टीम मध्ये कलेक्टिव्हली तुम्ही या सगळ्या गोष्टी ज्यावेळी शिकाल त्यावेळी तुम्हाला स्वतःला असं जाणवेल की येस, वी आर दी इंडस्ट्री रेडी पर्सनल्स. अँड कमिंग टू द पॉइंट, वर्क एथिक्स हा सगळ्यात इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे, जो की बाकीचे ऑर्डिनरी स्टुडंट्स आणि क्लबमध्ये काम करणारे स्टुडंट यांच्यामध्ये मेन असतो. फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्क एथिक्स इज द थिंग वेअर वी हॅव सेट द व्हॅल्यूज which are centered on the importance of doing a good work, right? And which is reflected especially in desire or determination to work hard. So and you can even see that ki work ethics चा industry related kiti importance asto. And second thing is adaptability. Adaptability means you can work in any kind of situation. Here in the club also you will getting in the situations where you will face some difficulties, but you know that how to work along with that. Next please. Now after that, what kind of benefits you are actually getting when you've been entering in the team? First is the standout. Standout means you will be the conspicuously special because of your excellence. Means आप बाकी के लोगों से थोड़ा सा ज्यादा ही in knowledge aspect, in practical and even theoretical aspect, and in key skill aspect, you will be better than others. Then industry ready, you will be the very much precise industry ready personnel after being in the team. Then guidance, you will be getting time to time guidance from seniors, from our excellent teachers. Engineering skills, learning, communication skills, everything you will be getting in this club. And most importantly, certificate. जो कुछ भी हम इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस इवेंट का जो सर्टिफिकेट है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा आपके प्लेसमेंट के वक्त. और उससे भी ज्यादा एक इम्पोर्टेंस है, जो भी कुछ इवेंट में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लाइक ऐसे इंडिया, फॉर्मूला भारत, इस इवेंट्स में हमें ऑन साइट प्लेसमेंट का चांसेस मिलता है. लाइक जो कोई भी लोग होते हैं इवेंट्स के ऑर्गेनाइजिंग कमिटी में, वो वहाँ पे प्रिसाइज इंजीनियर्स के क्या बोल सकते हैं, प्रीसाइज इंजीनियर्स को ढूंढ रहे होते हैं, और वहाँ पे हमें ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम ऑन साइट वहीं पे प्लेस हो जाए. So I hope you guys have got what are the benefits to be in this team. Now next I would like to hand over to my colleague. Okay, thank you. Ravindra, please turn off your mic. Am I audible to all of you? Yes, you are. Hello. Okay. Ravindra, please turn off your mic because I'm getting a little issue with that. So guys, as you can see, here is some tweet. So as you guys can see, here is the quote on the screen. Coming together is a beginning, keeping together is a progress, working together is a success. So guys, क्विकली अभी जवाब दे दो कि इस कोट्स का आपको क्या मतलब समझ में आता है. चैट बॉक्स में यूज कर लो एंड विद इन 20 सेकेंड्स मुझे आपके इसके ऊपर ओपिनियन बताओ. सो मैं आपको ये कोड भी एक्सप्लेन कर दूंगा, देन हम आगे बढ़ेंगे. सो जल्दी. ओके, ग्रेट सचिन. एनी अदर? तो ठीक है, चलो. सो कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग. लाइक सबको पता है कि अगर कोई काम स्टार्ट करने की बात करते हैं हम,
हम बहुत बार प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, लाइक हम कहते हैं कि हम आगे करेंगे, बाद में करेंगे, एंड रह जाते हैं। बट वही काम अगर टीम में साथ में किया जाता है तो बहुत बार आप साथ में आ जाते हो, देन आप बिगिन तो करते हो, उसी बहाने एटलीस्ट आप स्टार्ट तो कर देते हो। एंड जब आप साथ में रहते हो तो लाइक आप प्रोग्रेस भी कर देते हैं। एंड वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस, कि लाइक सक्सेस के लिए तो वर्किंग चाहिए, बट जब हम टीम में वर्क करते हैं तो अपना सक्सेस का लेवल कुछ अलग हद पे हो जाता है। तो नेक्स्ट प्लीज। So here you can see the slide. Here are our pictures from when we visited to scrapyard and garages. तो यहाँ पर भी एक कोट है, एक्सपीरियंस एंड ट्रैवल आर द एजुकेशन इन देमसेल्फ। लाइक सबको पता है कि अनुभव ही अपनी जिंदगी का सच्चा दोस्त होता है, बिकॉज एक्सपीरियंस लीड अस टू फाइंड प्रॉपर वे which we may not found anything perfect at the beginning, but as with the help of experience and our traveling, in traveling also we come to know a lot more about ourselves, lot more about our world, about our surroundings. So इससे हमें बहुत कुछ हेल्प हो जाती है एंड बहुत सारी नई चीजें हम समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे टीममेट्स में लाइक ऑटोमोबाइल व्हीकल के कुछ कुछ पार्ट वो चेक कर रहे हैं। वेरियस पार्ट स्टडी मतलब स्टडी करने के लिए हम ऐसे विजिट्स करते हैं एंड वहाँ पर हमें बेटर स्टडी करते हैं, उसके बेसिस पे हमें एक अच्छा ऑब्जर्वेशन एंड आगे रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट प्लीज। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे अपने कॉलेज में वर्कशॉप भी है, वहाँ हम यूज कर सकते हैं वो वर्कशॉप अपने व्हीकल को बिल्टअप करने के लिए। हमें वीएमजीपी लैब का भी एक्सेस है। वीएमजीपी लैब में हम मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग वर्क करते हैं। कॉलेज वर्कशॉप में कुछ कुछ मशीन है, लाइक लेथ मशीन है, मिलिंग मशीन है, जिसपे हम कुछ छोटे मोटे कंपोनेंट डिजाइन करने होते हैं तब करते हैं। हमारे पास एक अपना खुद का लैब भी है, सुप्रा लैब। वहाँ पर पूरा वर्किंग हम करते हैं, लाइक डिजाइनिंग, प्लानिंग, टीम डिस्कशंस, टीम मीटिंग्स, ये सारी चीजें हम सुप्रा लैब्स में करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आवर मार्केट सर्वे। सो मार्केट सर्वे ये बहुत जरूरी चीज होती है, बिकॉज मार्केट सर्वे इज नेसेसिटी फॉर फाइंडिंग द मटेरियल एज पर रिक्वायरमेंट विद कीपिंग वेरियस एस्पेक्ट इन अवर माइंड। अब सबको लगता होगा मार्केट सर्वे में इतना होता ही क्या है, लाइक मार्केट्स में जाके कोई सामान उठा के ही लाना है, बट वैसे नहीं होता। हम जहाँ पर व्हीकल डिजाइन करते हैं उसके लिए एक स्पेसिफिक ग्रेडिंग दी जाती है, उसका एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन रहता है, उस हिसाब से हमें वो कंपोनेंट फाइंड करना पड़ता है, वो मटेरियल देखना पड़ता है। उसके लिए हम कोटेशंस चेक करते हैं, और कोटेशंस में वो मटेरियल का ग्रेड, उसका प्राइसिंग रेंज, उसकी ड्यूरेबिलिटी एंड उसकी यूजेस एक्सेट्रा, ऑल सारी चीजें उसमें रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स दिखाए हुए हैं, मार्केट कोटेशंस भी दिखाए हुए हैं। ये सारा मार्केट सर्वे हमारे टीम मेंबर्स ने किया हुआ है। नेक्स्ट प्लीज। A good discussion leads to a multidimensional ideas। अब हम टीम में वर्क करते हैं, बहुत बार कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें दिक्कत आती है, वहाँ हमें लगता है कि हमें अब डिस्कस करना चाहिए, तब जाके हमें कुछ अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो मीटिंग्स तो ऐसे शेड्यूल की जाती है, हर वीक में टीम मीटिंग्स होती रहती है, बट कभी कभी कुछ कुछ पॉइंट्स आते हैं या कुछ दिक्कत आती है तो टीम मीटिंग ली जाती है। मतलब टीम मीटिंग इज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वेयर वी शेयर अवर आइडियाज विद इन अस। एंड जब हम बात पूरी टीम से करते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक ही ऑप्शन हमें मिलता है, लाइक हर किसी पर्सन का अपना अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, तो इस वजह से हमें मल्टी डिमेंशनल आइडियाज मिलते हैं, जिस आइडिया को हम एक बेटर रिजल्ट में आगे जाके डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। So here you can see some significant and knowledgeable sessions by our teachers and seniors। तो यहाँ पर फर्स्ट पिक में आप देख सकते हो एस एम जोशी सर, जो कि हमारे प्रीवियस प्रिंसिपल थे। He was the principal while we started working in college during pandemic time। He always motivated us to strive for better performance and results। And पानगवानी सर जो कि अभी करंट प्रिंसिपल है, पानगवानी सर ने भी हमें गाइडेंस बहुत बार दिया है, वो लैब में भी विजिट कर चुके हैं बहुत बार। अगर हमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं या सर को कुछ सजेशन होता है तो सर हमें सजेस्ट करते हैं एंड बेटर वे में गाइड करते हैं। एंड लास्ट वीक में आप देख सकते हो मोटर स्पोर्ट क्लब का कॉन्फ्रेंस है,
सो कॉन्फ्रेंस में लाइक अपने कॉलेज के मोटर स्पोर्ट क्लब साथ में आते हैं, वहाँ पर भी एक वेरियस आइडिया शेयरिंग होता है, अलग अलग प्रॉब्लम्स पे बातें होती है, एंड एक अपने कॉलेज को अच्छे लेवल पे कैसे और पुश किया जाए और मोटर स्पोर्ट्स इवेंट में, उसके रिगार्डिंग वहाँ पर बातें होती है. नेक्स्ट प्लीज. डूइंग द बेस्ट एट दिस मोमेंट पुट्स यू इन द बेस्ट प्लेस फॉर नेक्स्ट मोमेंट. सो इसका मतलब सिंपली ये है, अगर आप इस मोमेंट पे कुछ थिंक कर रहे हो एंड आपने पूरा सिनेरियो कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो आप अभी जो कुछ डिसीजन लोगे वो डिसीजन आपको नेक्स्ट मोमेंट के लिए बहुत बेस्ट पोजीशन में जाके रखेगा. लाइक अगर आप एसएफआर में अभी आ जाते हो, लाइक आप एफई में हो, एफई में आते ही आप एसएफआर जैसे कोई मतलब एसएफआर को ज्वाइन करते हो, देन यू आर ऑब्वियसली पुटिंग फॉरवर्ड, यू आर मेकिंग द बेस्ट प्लेस फॉर योर नेक्स्ट मोमेंट, बिकॉज आप में कुछ तो अलग होगा, आप में कुछ तो हटके होगा. लाइक आप बहुत कुछ बेनिफिट यहाँ से गेन कर पाओगे. एंड या आपने भी अब तक जितना सेशन अटेंड किया तब तक आपको पता चला है कि यहाँ पर बेनिफिट्स कितने हैं एंड कितनी अलग अलग चीजें हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं. लाइक यहाँ पर एक्सपोजर आपको बहुत मिलेगा एंड उस हिसाब से आपको आगे जाके लाइफ में बहुत इसकी हेल्प होगी. नेक्स्ट प्लीज. सो अब सबके दिमाग का मतलब वो जो डाउट होगा कि आपने इतना सब कुछ बताया लेकिन अब आगे कैसे आना है, इस टीम का हिस्सा कैसे बने. तो सबसे पहले अपना कॉलेज इंडक्शन हो चुका है, जो जिसमें हमने टीम इंट्रोड्यूस की थी, उसमें भी हमने एक छोटा सा इंडक्शन सेशन लिया था. देन अभी फिलहाल हमने जो टीम इंडक्शन सेशन ऑर्गेनाइज किया है, यहाँ पर हमने आपको टीम के रिगार्डिंग, इवेंट के रिगार्डिंग, हमारा अपना वर्किंग कैसे होता है उसके रिगार्डिंग पूरी बातें बताई. अब यहाँ पे आगे चैट बॉक्स में आपको एप्टीट्यूड टेस्ट का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा. वो एक गूगल फॉर्म रहेगा, वो एप्टीट्यूड टेस्ट आपको देना है. देन उसके बाद हम इंटरव्यू आपके शेड्यूल करेंगे जल्दी ही, एंड उस इंटरव्यू के बेसिस पे आपके रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे. एंड इंटरव्यू प्रोसेस में आपको इस प्रेजेंटेशन के ऊपर मतलब आपको इस प्रेजेंटेशन में जो जो बताया गया है उसके ऊपर क्वेश्चनिंग होगी. एंड हाँ, आपका बेसिक नॉलेज टेस्ट किया जाएगा जो कि आपके 12th का होगा, या किसी का डिप्लोमा से कोई होगा तो डिप्लोमा से हो सकता है. तो इस तरह से हम सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे करेंगे. नेक्स्ट प्लीज. सो गाइज नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू Q&A सेशन. आपके अब जितने क्वेश्चंस है आप क्वेश्चंस पूछो, हम एंड मतलब हमारी टीम आपको आंसर करती जाएगी. Okay, so throughout the session, हिंदी, मराठी, इंग्लिश सायमल्टेनियसली एक्सप्लेन केलं गेलं होतं. तर कुणाला जर काही डाऊट असले तर फ्रँकली विचारा, बिकॉज इथे आज कोणी फॅकल्टी नाही आहे, सगळे स्टुडंट्सच आहेत. ओके, सो कॅन यू शेअर द सॉफ्टवेअर नेम? या ऑफकोर्स, सॉफ्टवेअर्सचे नाव सुद्धा शेअर करू आम्ही, काय प्रॉब्लेम नाही आहे. Okay, so पहिला क्वेश्चन आलाय that Shraddha Shetty is asking how many members are there in your team right now? Okay, so right now we have a member team of about 25 to 27 members. Currently we are working together. There's one question from Aditya. How are the racers selected? Racers mean you want to say driver or something else, Aditya? Please clarify this. Okay, driver. So drivers are selected on the basis of skills. We conduct a driving test after the completion of manufacturing, in which you'll be selected as per your skills.
and anyone who presents himself as a better driver can be selected as driver. Nothing like your senior, junior, anything not be there. Other questions, please? On any event till date or best performance in the event. So it's our first event. We are participating in SAE Supra for the first time. Our team is new and just formed in previous year. We have completed our journey of 7 to 8 months, and we are heading towards new events. So till date, we are participated in SAE India, but event is on board. Okay, Hello. yes. सर मुझे ये पूछना था, अगर जो भी अब आपने जो अभी एप्टीट्यूड टेस्ट भेजा है वो हम लोग फिल करने के बाद आप बोले ना, जैसा कि आपका इंटरव्यू वो सब होगा, अगर इंटरव्यू में हम लोग फेल होते हैं या फिर कम मार्क्स आते हैं, पर फिर भी मेरे को इंटरेस्ट है कि मेरे को ये करने का, ये मतलब ये इवेंट में मेरे को पार्टिसिपेट करने का है, तो उसका कुछ अलग प्रोसेस है क्या? नहीं, उसके लिए कोई अलग प्रोसेस नहीं है. इंटरव्यू के टाइम में जो भी सिलेक्ट होगा हम उसको अपॉर्चुनिटी देंगे, बट आपको इंटरेस्ट है तो आप साइड बाय आप टीम में वर्क कर सकते हैं एज इन नॉलेज के लिए. ठीक है. Please share this link of form and WhatsApp group. I request my team members to put every link in the chat box. If there is any country, okay. As per we decided, or we are going within the management, so we get some country from our team members, and other thing we focuses on the sponsorships by other automotive industries, mostly on the sponsorships. Any other questions, please? Our second year student recruiter is well. Yes, second year students are also welcomed in this team. Please be frank and ask any question. If you have a language problem, you want to listen the question, anything in Marathi, Hindi, English, or any other language, I welcomes you. Please do ask your comfortable communication language. येस गाईज, तुम्ही मराठीत पण बोलू शकता. आपल्याकडे लँग्वेज बॅरियर नाही आहे. मराठी, हिंदी, इंग्लिश मध्ये तुमचे जे काही डाऊट्स असतील तुम्ही विचारा. आणि माईक ऑन नसेल तर विचारा. चॅट बॉक्स मध्ये तुम्ही टाईप करू शकता, आम्ही त्याचे आन्सर देऊ. How are you raise the fund for this event? That means students are rising, or any you have any best sponsorship? Okay, Prashad, please just repeat your question once again. Okay, my question is that how you raise the fund for this event? From how percent you collect from the students? That you have any best sponsorship companies, and how percent the college sponsored us in this event? Okay, this has been discussed after first team meeting. It is not supposed by college or our sponsors to discuss this thing with everyone. So we can't open up with this at this moment. I would like to share these details in your interview, might be an interview, or after the first team meetings. This financial statements remain within the team. Okay, test Kadi, just I would like to ask any person to read this in Marathi about. Okay. शुभम अभंग विचारतोय की टेस्ट कधीपर्यंत सबमिट करायची आहे. आय गेस टेस्ट सबमिट करायचं काहीतरी टाइम लिमिट असणार आहे, आज किंवा उद्या 11:59 पर्यंत, तसं कळवलं जाईल. शुभम. Okay, Akash has asked one question. How many students are there in a team? You asking about how many students are in present, or we are recruiting? Akash? Okay, in recruitment. Okay.
In recruitment, we are focusing as per the results. We only acquire the students who has their gratitude toward performing for our team or contributing for our team and focuses on their growth. We don't have any number. If I'm lagging with some student, it is good for me, but I only acquire talented and determined persons. When we have to attend aptitude, okay, after the recruitment you can attend your aptitude test. Further questions please. गर्ल्स कडून काही क्वेश्चन्स असतील तर प्लीज विचारा फ्रँकली. Make sure everyone join. Okay, can you please share some picture of current ongoing model of SFR? Okay, currently we are in designing phase. If you would like to see some pictures, I would show. Okay, just a second. I would show a YouTube video. There's some sort of problem. I'll be sharing that screen as well with you. Okay. Okay, so is my screen visible? Yes, it is. So you can have a look over here that how we do work and different things in this. So if you wanna have a look on prototypes, we'll be sharing those as well in what we say after opening of college or any other incident. If you were present in college, we also like to share these things, our prototypes and whatever we have with us, because at right now we don't have the different things. Okay. Any other questions? For the Lily test, कसं करायचं? Sakshi, please repeat. लिंक दिलेली आहे ती टेस्ट कशी सोडवायची? Pranjali, please look into this. साक्षी, जी लिंक आहे ना एक्झामची क्विजची, तर ती आफ्टर द इंडक्शन तुम्ही सॉल्व करू शकता. आज दिवसभरात कधीही करा, फक्त ती लिंक तुमच्या जवळ राहू द्या. आय थिंक व्हॉट्सॲप ईमेल याच्यावर ग्रुप्सवर तुम्हाला फॉरवर्ड केली गेलेली आहे. Okay, our achievement goes up till the placement, and the skills are you can be a professional in F1 racing with this. For a surprising thing for you and a good news for every Supra member and those who are interested in Formula races, that India is for the first time in the history is going to host F1 event in Hyderabad within this year. So you have a professional career with this, or you can get placed with these skills in any of the industry. It might be automotive or some IT sector or anywhere else. इवन गर्ल्सला सुद्धा एक डाऊट असेल की ड्रायव्हर फक्त मुलंच बनतात का, तर तसं नाहीये. या वेळेसपासून आपण गर्ल्सला सुद्धा सिमिलर ऑपॉर्च्युनिटी देतोय. इवन दे कॅन बी ऑल्सो अ ड्रायव्हर इफ दे विल, म्हणजे ते जर चांगले परफॉर्म करू शकले तर. ओके, दे आर विलिंग, दे कॅन बी ऑल्सो अ ड्रायव्हर फॉर आवर सुप्रा.
सो गर्ल्स कडनं पण एक्सपेक्टेड आहे की त्यांनी सुद्धा त्यांचं तेवढंच फीडबॅक द्यावं. Okay, any other question from any person? Or those who are unsatisfied with the answers can again raise their question and ask in an appropriate way as per they want. Okay. Shraddha said it. Okay. Which year students are permitted to go to the competition place? Okay. Every year student, it might be a fourth year, first year, second, or anyone. All those who are in registered team from first to final year are equally permitted to participate in the on-site event and can have equal presentation opportunities in every technical aspects within the event. Anjali said, okay, might be some students don't have links. So I think many links has been shared in a group. And while again, we all are sharing those links again and again, and our induction group and your first year official group will also have these links. If anyone wants to join other groups and as well, so they might have the WhatsApp group link, the form link, or any other link within the your official group of your year. Like if someone is in a first year automobile, they will be having the link in that. Mac, they will be having their links within their official group, first year official groups. Okay. Any other query, question, or Okay. I have seen one question from Sachin Kaste. What will be a role of computer student? So Sachin, I am also the student from computer department. I am from TE. So see, here you can do the website development, MATLAB software. You can learn the MATLAB software. That are the software we use for coding and some various operation on the vehicle. So here is also we can get hands-on experience and practice to be IT industry ready. And uh, as like you said, the role of computer student. So मतलब यहाँ पर आप बहुत सारे रोल्स प्ले कर सकते हो. लाइक टीम में आपको हर कोई रोल करने का मौका कहीं ना कहीं मिलता है. उस हिसाब से हम टीम में वर्क करते हैं तो बहुत सारी चीजें आप नए नए सीखोगे. एंड आपको कंप्यूटर का तो नॉलेज आ ही जाएगा कंप्यूटर डिपार्टमेंट का, बट आप बाकी डिपार्टमेंट्स का भी नॉलेज और गेन कर सकते हो. सो कंप्यूटर स्टूडेंट्स का मोस्टली रोल तो यही रहता है कि वेब डेवलपमेंट है, सोशल मीडिया हैंडलिंग है एंड मैटलैब सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग जो कुछ हमें डिजाइन एंड डेवलपमेंट करनी पड़ती है उसके लिए. एंड वो सॉफ्टवेयर हमें बहुत आगे काम में आता है लाइक डेटा साइंस के फील्ड में. Okay, one question is from there. Do you teach coding to first year students? Because I'm from general science background. Yes, as per the needed things, if we need something to be done in our team, if we need some templates to be designed for our softwares or anything else, or if we need our website to be casted over our college website or anything, these things are also done, and you can join our small compartment groups and you can learn these things over there. As Ritvik told, Ritvik is now hosting our web development within our college, and he's working on college website. So you can learn coding and other changes that is done to coding on websites and other things, or making templates for any kind of softwares like Adam software, Lotus, Katia, or anything else you can learn. Other questions, please. Okay, some students are joining now. So those who have joined now, they can also raise their questions. And if you there might be a lot of like complications, so you can have a look on our YouTube channel or YouTube link where we have displayed all or
casted or broadcasted or premiere this whole induction program. So have a look on that, and afterwards you can ask the questions to our personal level. Okay. Further questions, please. A lot of many students have joined, but they are simply listening. If you have any kind of doubt, just please ask. Okay. Supra is held in Pranjali, please direct this. Yes, Shraddha. Supra is held every year. This event is organized by SAE India every year. Not only Supra SAE, but also Formula Bharat is held every year. Just because of the COVID-19 pandemic, the situations are going, means the events are going online. And after that, the selection in the virtuals, you will be selected for the on-field event as well. And I think Aniket Khoparkar also added one question that in aptitude test, all questions are compulsory. Yes, all questions are compulsory. Doesn't matter whether it is right or wrong. The thing will be, notice that what is your approach for solving them. I have seen many of you in like college admissions or other meets, so you were not that much of silent persons. Please do ask things. Siddharth Mahamuni is asking one of the question that when will be the interview for those who will crack the aptitude? Yeah, soon we will be notifying you about the interview. Once your aptitude results are out, we'll definitely let you know about it. Most probably, yes. सर वो आता जे ऍप्टिट्यूड टेस्ट आहे ना त्यात काही क्वेश्चन्स आम्हाला माहीतच नाहीत. मग सर त्याचं आम्ही उत्तर रॉंग पण देऊ शकत नाही आणि म्हणजे आम्हाला माहीतच नाही की ऍक्च्युअली उत्तर काय द्यायचं ते क्वेश्चन्स काय करायचे आम्ही. That's up to you. This shows your attitude and your behavior and your personality. So whatever you do with the questions, you will be accepting it, but it will be actually get marks over there. Sir, we don't know na that answer of that question. Try something to get it. Okay. Uh, yes, yes. As per mentioned by Abhishek Pandey, your slots will be given to you and you'll be contact personally on your phone numbers and emails. What will you ask in an okay? I would like to call upon Pranjali and Shruti to explain this. Oh, yeah, sure. So, Shraddha, basically, after you crack your aptitude test, you will be, depending upon your performance in the aptitude, you will be called for the interview. And according to your area of interest and as well as what team requires from you, you will be asked in the interview. So, don't get much stressed about it. It will be the normal thing. So, other questions from your side? Whatever doubt you have, please ask. We are here to solve your doubts. Anything. Anything can be asked in this session. गाइस फ्रीली डाउट्स पूछ सकते हो, यहाँ पे कोई फैकल्टी भी नहीं है, आपको कोई मतलब आपके डाउट्स पे जज भी नहीं करने वाला, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आराम से आप जो कुछ क्वेश्चन से पूछो उसके आंसर्स हम देंगे. एंड मेक श्योर कि आप सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो एंड आप वो एप्टीट्यूड टेस्ट दो.
Shraddha, what you are asking that can we quit the club anytime we want? Actually, Shraddha, there are certain protocols when you come into a team and when you join it, you have to follow certain protocols. So definitely we will be giving you a certain time limit to think over it. And if you are willing to live the team at the moment, then for the 1 month prior you have to make sure that you should inform the team members, especially the management team. So by the protocol wise we have to follow the things. As all members have their protocol or to be followed by them to join any group or any organization, any team, any club, there are similar ways to quit it. Many procedures has to be followed. Okay, any other person to be? Please do ask. Okay, लगता है बाकी सब ऐसे आए हैं कि लेक्चर चल रहा है and खत्म करके जाना है. तो आयुष, हर्षल, रविंद्र, अथर्व, शांतनु, प्रतीक, रोहन, शुभांगी सभी लोग छोड़ने लगे क्या नाम लिए तो? अंजलि, दीपक, यशराज, स्नेहल, नीनाथ, प्रसाद, Siddharth, many persons are there. Many left because I called some of the names. So, if anyone has any doubt, just ask, or if you have any query, please do ask. How many costs take in whole competition by the sponsors? Okay, it's on the event and the requirement of our teams. What is a management team or financial team? What is the amount and what is required and what the sponsors provide? Only sponsorship is given on the innovation that we do. So mostly we focuses on innovations and work. The money is like we can take it if we do the things. So sponsorship or any amount depends on the talent or the work we have done. If we have make something innovative, then we're obviously getting some sponsorship. Okay. Any other question? Do we have to contribute by our side sometimes? Yes. If there are some expenditures, we in team we actually do contributions from ourselves, and we assure that our contributions should be minimal. It should not be exceeded of any amount that or it should be equally dividend on every person. Yes. Okay, any more questions from your side? If you have any question, please do ask. I think people are leaving one-on-one. All doubts are clear. Okay, just a second. प्लीज सोडवल्यानंतर काय करायचं? Huh?
येस साक्षी, काय बोललीस? हॅलो टेस्ट सोडवली. साक्षी, तुझा आवाज क्लिअर येत नाहीये. ती विचारते की टीम जर इन फ्युचर सोडायची असेल तर काय करायचं? टेस्ट सॉल्व केल्यानंतर टेस्ट सॉल्व केल्यावर काय? नंतर काय करायचं? ओके. ओके, टेस्ट सॉल्व होने के बाद हम लोग कल या फिर उसके नेक्स्ट डे या आने वाले टाइम में आपको पर्सनली, एक्चुअल में पर्सनली नहीं, सबका एक शीट रिलीज करेंगे जिसमें स्कोर्स होंगे. आप वो स्कोर्स देख सकते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे एंड उसका जो लिंक है वो आपको पर्सनली दे दिया जाएगा. ओके ओके, आई थिंक ऑल डाउट्स हैज बीन क्लियर्ड, मेंशन्ड बाय 2-3 मेंबर्स. Okay, and WhatsApp link has been provided, aptitude test link has been provided. If you need any kind of links or other thing, please do contact as per mentioned in the poster to Atharva Joshi or Namrata Pawar. Okay. So I have shared your contact also in chat box. So अगर आपको फिर से कोई डाउट क्वेरीज आती है तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो. कोई भी लिंक की रिक्वायरमेंट आपको, आप लोग इनसे बात कीजिए, आपको सारा कुछ मिल जाएगा. यस, आपको व्हाट्स ऑफिशियल ग्रुप पे लिंक शेयर की गई है, आप चेक कर सकते हो. आई थिंक ये श्रद्धा ने पूछा था. ओके, अभी किसी को डाउट हो या कोई लिंक वगैरह की रिक्वायरमेंट हो तो आप लोग हमें बता सकते हैं या फिर हमारे कॉन्टैक्ट्स को कांटेक्ट कर सकते हैं. और आज का ये जो इंडक्शन सेशन है इसी के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं. Thank you guys for joining induction session. If you need any kind of knowledge or you want to grow, just be sure you can do extra activities like joining these clubs and will be beneficial in every aspect. Thank you guys. We end this meet here as well.